So starting the Feb March 2024 4-2 theory paper, which was the very first question is very easy. उससे first part में उसने बोला है कि describe the motion between 0.9 and 2.9 minutes. So we could see clearly कि 0.9 to 2.9 as it's a velocity time graph है, हमारे पास speed time graph है, तो ये किसको show करेगा? Constant speed को. सर And मुझे स्क्रीन sorry, I think so मैंने screen share ही नहीं की है. Can you see the screen now, all of you? It's loading, I think so. You can see now, I guess. Okay. In the next part, they have asked 2.9 to 3.5 seconds. So 2.9 to 3.5 seconds, we could see that uniform deceleration only हमारे पास. So uniform deceleration. And 3.5 to 4.5, you could see as a speed time graph, तो ये किसको show करेगा? Rest को show करेगा. So हमारे पास 3 marks यहीं से आ गए. Next में उसने बोला they have asked us to find out the kinetic energy, and the kinetic energy of the particle is given as, what is the formula? 1 by 2 mv square. They have given us the mass, they have given us the speed, they have given the distance traveled. So for now we just need to put the values right away, which is 18,000 into 8.9 square. As the units are already in kilograms and meter per second, we do not need to convert. So the value would come out to be ये 9,000 हो जाएगा. 9,000 into 8.9 we're getting 710,000 joules, 710 kilojoules. Moving on to the next one, they have asked us to find out the speed. So we know that K force is given as, force का formula क्या होता है? Work is done is equals to, we know that K work done is equals to change of kinetic energy के equal होता है, and stop the bus है, which means final speed हमारे पास क्या होगी? 0, तो उसकी kinetic energy भी क्या होगी? 0. So change of kinetic energy work done would be equals to 710 kilojoules. ये फैक्टर आ गया. Then W is equals to FD का फॉर्मूला लिख दिया, and D चूंकि उसने हमें क्वेश्चन के पार्ट में ऑलरेडी मेंशन आउट किया हुआ था. So 710 into 10 raised to power 3 divided by the distance, which is 23, would be equals to the force which would be applied to find out the value. So this would give an answer of 31,000 newtons or 31 kilonewtons. Okay. Moving on to the next one, they have asked us to find out, define impulse. Impulse, as there's single mass, so we could just simply say impulse is equal to 4 F cross T, or product of force and time. Also, we know that the impulse could also be defined as the force that acts for a very short interval of very short interval of time. ठीक हो गया. We could use any of it because 1 marks a question था. अब उसने बोला है कि show that the force exerted on the gas is 3900 kilonewton. So उसने हमें mass per unit time दिया हुआ है, उसने हमें speed दी हुई है, which means F is equals to mv over t का यूनिट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. m over t उसने हमें दिया हुआ, which is 2800. यूनिट्स देखो ना, किलोग्राम्स पर यूनिट सेकेंड, तो 2800 उसने हमें दिया हुआ टाइम्स 1400. मल्टीप्लाई करने देखें 39 आ रहा है. Yes, we are getting 392,000, which could be rounded off to 3900,000 newtons or 3900
किलोमीटर, बस ये 10⁻³ होता है and 10⁻³ kilos में होता है. Can all of you guys hear me properly? Everything clear to all of you? Yes. Yes. Oh, I forgot to send the link to Ahmed as well. Ahmed wanted to join. Let me send it as well. मैं C3 के ग्रुप में भी कर देता हूँ. Anyone else wants to join? सर ये वाला एक दफा दोबारा समझा देंगे इसकी वर्किंग, ये जो अभी अभी आपने लिखा है MV/VT वाला. हमने Wednesday. फोर्स. Then उसने हमें कहा है कि I have to calculate the maximum mass that this force can lift from the ground, ignoring air resistance. So formula हमारे पास किसकी होगा? Resultant force का formula हम यूज करेंगे. Air resistance ignored, तो force is equals to mg की इक्वल आ जाएगा. Force is 39,000 और हम इसको लिख देते हैं divided by g, which is 9.8. This would be equals to mass 4 into 10⁻⁵ kilograms. अच्छा, अगेन यहाँ से F minus mg is equals to 0 cause resultant force किसके इक्वल होगी? वेट के इक्वल होगी. उसका रीजन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है. तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगी वेट इक्वल, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एज एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट. सो मैंने F minus mg is equals to 0 को रीअरेंज किया तो F is equals to mg बन गया. F was calculated in the previous part, mass हमें कैलकुलेट करना था तो mg का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया. Do not forget the mass is given of the gases, not of the of anything else ना. तो और वो भी mass per unit वो दिया बस. Using the formula F is equals to mg, F was given in the previous part, calculated in the previous part, equals to mg. तो हमने find out कर लिया. This came out to be 4 into 10⁻⁵. Moving on to the next question, they have asked us to find out the pressure. Pressure is given as force per unit area. Force per unit area, but we need to keep in mind that we have 4 tires. So area को उसको multiply उसके साथ करना है. So multiplying this with 4, I'm getting चला गया. I calculate out. 0.16 times 4 is 0.064 and pressure is equal to force into area, so 13,000 times area, which is 0.064. So this would be equals to 830. Oh, मैंने opposite कर दिया. Formula ही opposite लिख दिया and Norman corrected me. Pressure is equal to force per unit area होता है. हमें वही calculate करना था. Force is 13,000 and area is 0.016 times 4 cos 4 tires हैं. So this is giving us an answer of 200,000, which is 200 kilopascals. Always write the answer into this block, class. If you will not write your answer here, you will not get any marks no matter what, even if your question is correct. Explain in terms of particle why the air pressure in the tire increases when the car travels. Due to friction, clearly. Due to friction between tires and road, the kinetic energy of the particle increases, leading to increase in pressure or more rate of cooling. In the next part, उसने कहा है maximum number of balloons that could be filled. Up these kind of question I've already explained to you. If the number of balloons are to be found, which means unitless quantity है,
यूनिटलेस क्वांटिटी व्हेन एवर इज टू बी मेजर्ड तो सेम क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करना होता है, ठीक है। सो पीवी is equals to PV उसने दिया हुआ है has a volume of this of the compressed gas is released from the cylinder of each balloon contains 0.15. I guess हमें इस तरह का kind of question पहले भी एग्जाम्स में आ चुका हुआ है if I am not wrong. बस लग गया। Sure. Let me read the question again. A gas cylinder contains helium gas at a pressure of this. A volume of 0.026 meter cube of compressed gas is released from the cylinder into balloon. Each balloon contains 0.15 meter cube of helium at atmospheric pressure. The temperature remains constant. Calculate the greatest number of balloons that can be filled out of it. Let me P1 V1 equals to P2 V2 यूज करके हम पहले V2 फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेशर is 2 into 10 raised to power 6 times 0.026 divided by 1 into 10 raised to power 5। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, total volume consumed, so 2 into 6 times 0.026 divided by 1 exponent 5 is giving us 0.52 centimeter cube. अगर total each balloon contains 0.53 और हमें number of balloons count करने हैं, 0.52 divided by 0.15 से हम divide कर देंगे, we will get number of balloons which would give us 34. फिर क्या करेंगे दोबारा बता दें इससे, 5 किसको 2 किससे डिवाइड divided by करेंगे? अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम यूज जो है केम आउट टू बी 0.52 मीटर क्यूब्स। अगर एक बलून के अंदर 0.015 मीटर क्यूब आ रहा है तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, दोनों वॉल्यूम्स को, विल गेट नंबर ऑफ बलून्स। तो मैंने डिवाइड आई एम गेटिंग 34। अगेन आई रिपीट एवरीथिंग। उसने हमें प्रेशर दिया हुआ था, उसके अगेंस्ट उसका वॉल्यूम दिया हुआ था, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट कितना वॉल्यूम यूज हुआ हमने वो पहले कैलकुलेट कर लिया, टोटल वॉल्यूम यूज्ड, ठीक है। इट वाज 0.52 यानी 0.52 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज वाज यूज्ड टू फिल अप द बलून्स। अगर एक बलून इज गेटिंग 0.015, सो हाउ मेनी बलून्स कुड हैव बीन फिल्ड? तो हमने टोटल वॉल्यूम यूज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूज्ड बाय वन बलून को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 34। तो 34 balloons have been filled using this. सर तो जो ये Next question. 0.026 अपर वैल्यू ये किस चीज की है? ये हमारे पास वॉल्यूम P, नहीं है जो ये इस प्रेशर का वॉल्यूम था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना वॉल्यूम यूज हुआ हमने वो करना था फाइंड आउट, कि कितने नंबर ऑफ बलून्स फिल्ड अप हुए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का फॉर्मूला लगा के टोटल वॉल्यूम यूज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इस प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर था दैट वाज 0.026, बट हाउ मच वॉल्यूम वाज यूज्ड बाय द बलून्स वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। P1 V एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फाइंड आउट कर लिया, वही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का फॉर्मूला यूज करके तो व्हेन आई हम इस गॉट द V2 के टोटल अंदर V1 नहीं ऐड करेंगे? V1 टोटल की ऐड नहीं नहीं, हमने टोटल ऐड नहीं वॉल्यूम करेंगे फाइंड आउट कर लिया ना हमने यार। जैसे होता है ना कि 10 बलून 10 एप्पल्स इज कॉस्टिंग 20 सेंट्स, तो वन एप्पल कितना काउंट करेगा? तो पहले हमें अगर हमने सबसे पहले 20 एप्पल्स का काउंट कर लिया, विच मीन टोटल वॉल्यूम यूज बाय द बलून पहले हमने काउंट किया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट केम आउट टू बी 0.52 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब सॉरी। और फिर अगर एक बैलून जो है हमारे पास इज यूटिलाइजिंग 0.15 मीटर्स, तो हमने उसको पुट किया और अपने नंबर ऑफ बैलून्स काउंट कर लिए। क्लियर है सर? जी
नेक्स्ट उसने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करिए, अगेन एन इजी क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 Kelvin. Hold on. To raise the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 Kelvin. चूंकि 2 मार्क्स था इसमें से टोटल हम डेफिनेशन लिख देंगे, एंड अगर स्पेस बच जाए तो बेशक उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं। देन उसने हमें मास कैलकुलेट करने को बोला है, उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, उसने डेंसिटी दिया हुआ है, उसने डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, उसने टाइम दिया हुआ है। सो मच ऑफ डाटा गिवन, बट आई थिंक सो इन डिफरेंट पार्ट्स में हमें उसको यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे। Mass is equals to density into volume, which means 910 into 0.024. यूनिट सेम ही है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मास आ जाएगा 2.2 एंड एनर्जी वाला फॉर्मूला 2.2 लगा। kilograms. नेक्स्ट पार्ट में एनर्जी आई गेस यूज वर्ड, नेक्स्ट पार्ट में उसके एनर्जी वर्ड। यहाँ पे हम E is equals to m c delta theta, m is 2.2, c is 2000, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 180 to 20 which is 161 जाएगा। तो we'll put it, energy is coming out rounded off to 700,000 joules or 700 kilojoules। अब पावर कैलकुलेट करना है। पावर किसकी इक्वल होता है? एनर्जी ओवर टाइम के। हमें एनर्जी इज 700,000 एंड टाइम इज 7 into 60, ठीक है, ये आ जाएगा 1700 watts। यूनिट्स देखो उसने कहीं पे भी नहीं दिए हुए, तो हमें सबके साथ यूनिट्स लिखते होंगे, अदरवाइज मार्क्स रेट आफ्टर होगा ओवरऑल। ऑलवेज रिमेंबर दैट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार यहाँ तक? नो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कल ही हमने रिवाइज भी किया था काइंड ऑफ। तो उसने हमें पूछा है कि वी हैव टू राइट द राइट ऑप्शंस। सो ब्लूटूथ डाटा कनेक्शन में कौन सा यूज होता था? कल ही हमने पढ़ा है रेडियो वेव्स। ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज होती है? इंफ्रारेड रेज। सिक्योरिटी मार्किंग में भी कौन सी यूज होती है हमारे पास? अल्ट्रावायलेट। स्टरलाइजिंग फूड में कौन सी यूज होंगी? गामा रेज। एंड वायरलेस इंटरनेट के अंदर कौन सी यूज होती है? माइक्रोवेव। स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन एयर कितनी होगी? 3 × 10⁸ वाई? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स moves with the speed of light. In vacuum or air. And speed हमारे पास कितनी होती है? 3 × 10⁸. अच्छा जी। On figure, draw the 3 successive crusts before the gap reaches to क्या आएगा इसमें? कैसी शेप आएगी हमारे पास? हमदान सीधी लाइन बिफोर बनाने को बोला है। हाँ, बेसिकली हमने बस सीधी सीधी लाइनें बना देंगे। 1 2 and 3। जस्ट मेक श्योर कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑन ईदर वेव फ्रंट, एंड ऑलवेज यूज स्केल। इसके अंदर आपने कुछ और नहीं यूज करना। अच्छा जी, अब नाउ द गैप इज मेड वाइडर, क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर? वी हैव स्टडीड कि अब लेस सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनेंगे, ओनली द एजेस वुड बी सर्कुलर।
rest of the wave would be fine. It would be less circular than that of before, and again इस distance को increase नहीं करना, this must be equal. यहाँ पे wavefronts बना देंगे with equal distance in between the wavefronts. You'll get 2 marks out of it. Then we have favorite question मेरी class का, but I wish I had a scale. मैं रफ एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये एक सेंटर से जानी है यहाँ पे, बट ऐसे करते हैं ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, and अच्छा अब हमें बताइए एक लाइन सीधी जाएगी यहाँ से इसकी तरफ, एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि सेंटर ऑफ द लेंस कहाँ पे बनना है हमारे पास, यहाँ पे एग्जैक्ट a straight line. ठीक है, अब इसके अराउंड हम लोगों ने बना देना है दूसरी रे ने कैसे जाना है हमारे पास, ऐसे pass through straight, focus go reflect. ठीक है, and passes through the focus point underneath से. So this would be the focus point. The lines are too thick, but make sure कि आपने उनको प्रॉपर्ली ज्यादा थिक लाइंस नहीं बनानी, क्योंकि उससे भी हमने पढ़ा हुआ है इनएक्यूरेसीज आती है हमारे रिजल्ट. सो आवर ऑब्जेक्ट वुड लुक समथिंग लाइक दैट. लेट मी पुट दिस इन. और ये इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी जरा मुझे बताएं. व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द Inverted होगी, inverted होगी. इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल. But रियल वर्चुअल नहीं, सॉरी रियल ओनली. अब आई डोंट हैव स्केल विद मी, बट ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो डिस्टेंस हमारे पास कहाँ से कहाँ होगा. डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जब हमारे पास स्केल होगा ना, हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना, सेंटर ऑफ द लेंस से लेके फोकस पॉइंट तक. तो फोकस पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया. आई विश मेरे पास स्केल होता, आई कुड हैव मेजर्ड दैट डिस्टेंस, बट व्हाटएवर द वैल्यू वुड बी हमारे पास वही आंसर आएगा. अच्छा जी, टेकिंग यू बैक ऑन द पेपर. फोकल लेंथ हो गया. अब करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज हमने डिस्कस करनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज हमने अभी भी डिस्कस किया. क्या क्या होगा हमारे पास. एक तो हमारे पास क्या है, inverted, real, रियल, inverted और इन्वर्टेड, मैग्निफाइड. बिकॉज वी कुड सी क्लियरली कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ये, एंड साइज ऑफ इमेज कितना बन मैग्निफाइड. ओके, circuit symbol for potential divider. We know that कि potential divider and variable resistor का जो circuit symbol होता है वो सेम ही होता है, तो उसको हम बना देंगे something like that, ऐसे बना देंगे. एंड अब हमें V out फाइंड आउट करना है. V out उसने देखो किसके अक्रॉस फाइंड आउट किया हुआ है, R out के अक्रॉस. एंड वैल्यू ऑफ R इज 3 किलो ओम्स उसने हमें दी हुई है, तो क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. V out is equals to R over capital R R plus over R R. out. सॉरी R out ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि उसने R out के अक्रॉस ही फाइंड आउट करने को बोला हो. तो into V in which is 6 volts. So let's put the values. 1 divided by 3 times 6, तो 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास. सर 3 में 1 नहीं ऐड करेंगे नीचे. ओ हाँ 3, सॉरी थैंक यू 3 प्लस, so 1/4 into 6, और ये बन जाएगा 3/2, एंड 3/2 की वैल्यू होती है 1.5 volts. वही वेरिएबल रेजिस्टर का फॉर्मूला लगा.
और सॉरी पोटेंशियल डिवाइडेड। अगर यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाना था, आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी एन। एंड मैक्सिमम आउटपुट कब होती है, वी आउट वी इन के कब इक्वल होगा, व्हेन आर अप्रोचेस आर, और विच मींस हम फुल लेंथ यूज कर रहे हैं। अब ये मिक्सअप मत करना। देन उसने हमें क्या कहा है, कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 3 सेकंड। उसने हमें करंट और टाइम दोनों दे दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। आई की वैल्यू कितनी है, 1.7 × 10⁻³ मिली की वजह से इनटू 300, so this would give us 0.51 coulombs। बेयरली उसने हमें थ्रू आउट द पेपर कोई यूनिट मेंशन आउट किया हुआ, बेयरली ही कोई यूनिट मेंशन। ओके, फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा रूल लगना है हफ्सा, आपका फेवरेट क्वेश्चन? राइट हैंड ग्रिप रूल। हाँ, और अगर हम लोग अपना राइट हैंड रूल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें तो हमारे पास क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं, सब अपने एंड पे चेक करें। आर वी गेटिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रही है? सर हाथ ही नहीं पूरा आता, स्क्रीन बहुत छोटी है। क्लॉकवाइज। ठीक है, 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना देंगे, विद इन द पेज लिमिट बनाना। ठीक है, और चूंकि क्लॉकवाइज है तो हम एरो हेड्स ऐसे करते हैं। और यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, एज वी गो फर्दर अवे सर्कल्स का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है हमारे पास। सर एक क्वेश्चन, फोर्स डाउनवर्ड्स नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा? करंट डाउनवर्ड है अल्लाह के बंदे, हमने राइट हैंड रूल में थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है एंड द कर्लिंग फिंगर वुड इंडिकेट द डायरेक्शन। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इनफ स्पेस है। पहला क्लोजर होगा, दूसरा उससे थोड़ा सा फर्दर अवे होगा, एंड तीसरा उससे भी ज्यादा फर्दर अवे होगा। बिकॉज एज वी गो फर्दर अवे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकर होती है। सो मुफ्त के 3 मार्क्स मिल गए हमें। The current of wire increase in direction of the current is reversed. How does this affect? हमदान डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी चेंज कर दिया, क्या होगा? रहने दो हमदान, हफ्सा आप ही बता दो, मैंने पता नहीं किससे पूछ लिया। सर मैं बताने लग रहा नहीं आता। ऑब्वियसली हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया है तो अब एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। एंड मोर क्लोजर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, मोर क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं एंड स्ट्रॉन्गर भी लिख सकते हैं। देन उसने नेक्स्ट में बोला है why high electricity is transfer, high voltage पे क्यों करते हैं, because V is inversely proportional to current, so increasing voltage would reduce current, which in turns reduces resistive effects, so less power losses। Almost approaching to the second last question. Most alpha particles are experiment, sorry, alpha particle वाला experiment है। Most alpha particle passes through the thin film in a straight line। इससे हमें क्या पता लगा था, that atom is mostly empty space। free space, free space, empty space, whatever। Some of the alpha particles are deflected through an angle less than 90 and a few deflected through 180। Student explained two collisions after, अब again हमें पूरा गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। जो बिल्कुल 180 के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए थे उन्होंने किसको हिट किया था? न्यूक्लियस। हाँ, through angle less than, they बल्कि हम लोग लिखते हैं एटॉमिक साइजेस के बारे में लिखते हैं।
nucleus is very small. So not all the particles would hit the nucleus. So deflection occurs as they pass near the nucleus. Second 180 है. So nucleus, let me write it with some other color. Second clean हमारे पास क्या आएगी? Nucleus is positively charged and alpha particles are also positively charged, so they will be deflected back due to repulsion. State the change in the nucleus when beta particle is emitted. Beta particle जब emit होता है तो nucleus में क्या change आता है? Mass increases by 1 proton. अब उसने हमें इनिशियल काउंट रेट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ. सो दिस वुड गिव अस आई गेस 3 आ रहा है हमारे पास. इनिशियल काउंट रेट कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 यूजिंग द फॉर्मूला n ओवर 2 रेज़ टू पावर n. दैट डिकेज उसने हमें फाइंड आउट करने को बोला हुआ. ठीक है. सो 25 डिवाइडेड बाय 8 वुड गिव अस, अच्छा सबसे पहले उसने बोला है कि फिगर 10.1 present different positions A to H as the moon rotates around the earth. State a position of the moon where an observer on earth see there is a quarter of moon. Quarter of moon हमारे पास कहाँ पे आएगा? A and E के ऊपर, in these two positions. Full moon हमारे पास कहाँ पे आएगा? अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे फुल मून आएगा, बिकॉज उसकी C पे नहीं आएगा. पे कंप्लीट होगी. सी से तो उसने स्टार्ट किया, उस पे वहां पे बिल्कुल यहाँ पे अच्छा. एक साइड पे हाँ. पड़ी होगी, एक साइड पे नहीं पड़ी होगी, तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा ना. सर मगर G पे तो अर्थ आगे आ जाएगी सनलाइट, फिर कैसे होगा? फुल मून उसने कहा है. हमारे पास वो जो, एक सेकंड, बल्कि अच्छी बात है कि मैं इसी बहाने आप लोगों को वो जो बुक में डायग्राम बोल रहा था ना कि देख के रखना याद से, let me show you in our book exact यही डायग्राम बनी हुई है. If I could take you to that very last page हमारे पास जहाँ पे स्पेस फिजिक्स डिस्कस हो रहा है. ये देखो क्वार्टर किस में नजर आ रहा है? ए एंड सी में, ए एंड ई में. इसलिए कहता हूँ बुक को रीड कर लिया करें. फुल मून हमें कहाँ पे निकल दिख रहा है? यहाँ. तो अगर आपने बुक प्रॉपर्ली रीड की होती तो हम इस चीज के ऊपर अभी डिस्कशन ना करते. So the quarter moon will be seen at A and E. Now you know that this is also an important part from the book to review. Am I clear now? Moving on to the next part. State the approximate time taken for the moon to orbit the earth. तो वो कितना टाइम लेता है हमारे पास? हमारी बुक में लिखा हुआ है 27.5 days या approximately 1 month. तो हम दोनों की तरफ ही जा सकते हैं. एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ओवर
t एंड r की वैल्यू कितनी दी हुई इन्होंने 1.5 into 10 raised to power 8 है, तो किलो को भी ऐड करना है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय टाइम, और उसने किसका बोला हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अर्थ इन किलोमीटर्स पर आवर। सो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 365 into 24, क्योंकि उसने आवर्स में कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, तो हम लोग उसको फर्दर 60 into 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो 2 पाई अच्छा आप देखो यहाँ पे टाइम गिवन नहीं था, लेकिन उसने अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड पूछी हुई थी, एंड वी नो कि वो अपना एक ऑर्बिट कितने टाइम में कंप्लीट करती है 365 डेज में, एंड वन डे हैव 24 आवर्स, तो हमने वहां से इसको आइडेंटिफाई किया, तो हमें कॉमन नॉलेज अपना यूज करना है। सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10,000 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसने हमें टाइम कैलकुलेट सर करने को बोला हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5x 10⁻8, आपने 1.5x 10⁻11 मैंने बेटा लगाया। वही बताया कि किलो को भी तो ऐड करना है ना उसमें, क्यों के किलो के ऊपर थ्री मीटर? ओ सॉरी, हाँ सर सॉरी सॉरी सॉरी, 4,000, हाँ हाँ 4,000 हाँ हाँ हाँ, किलोमीटर पर आ रहा था वापस शायद। वापस 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 यही आएगा, तो उसने किलोमीटर्स पर आवर में कैलकुलेट करने को बोला है, इसका 1.5 into 10⁻80 रहने देंगे, सॉरी। एंड देन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड के, एंड डिस्टेंस हमारे पास कितना था 1.5 into 10⁻8। अब यहाँ पे मीटर्स पर सेकेंड, आप यहाँ पे 11 लेंगे, cos meters per second में हमारे पास स्पीड 3 into 10⁻8, so the answer is coming out to be 506। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। यहाँ पे 8 ही यूज करेंगे, क्योंकि उसने हमें यूनिट्स किलोमीटर्स पर आवर के ही दिए हैं, दैट्स व्हाई हमने जस्ट 24 से मल्टीप्लाई किया, 16 into 16 नहीं किया। प्रोटोस्टार को स्टेबल स्टार में फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है हफ्सा? ये सर इसमें इन्वर्ट यस यस, जब रेडिएशन इनवर्ट, प्रेशर हाँ और जी, ग्रेविटेशनल इनवर्ट वाली इक्वल हो जाता ग्रेविटेशनल है। force equals to outward radiation pressure। आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर, एक ही मार्क्स से तो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हबल्स कांस्टेंट क्या होता है 2 मार्क्स है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिसेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अवेलेबल, और Hubble's constant is given as v over d। तो recession speed divided by distance moved away is equals to Hubble's constant। State the equation which would, हाँ ये वाला भी हमारी बुक में गिवन है, मैं एक दफा बुक से दिखा भी दूं एंड देन हम इस पे आते हैं। अच्छा बुक में जाने से पहले उसने हमें एज ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट करने को बोला, विच मींस टी किसकी इक्वल होता है 1 over Hubble's constant के, दिस वुड बी इक्वल्स टू d over v, और वहां से हमारे पास एज ऑफ द यूनिवर्स निकला था, एंड हमारी बुक के अंदर ये उन्होंने हबल्स कांस्टेंट का क्वेश्चन करके भी दिया हो, एज ऑफ द यूनिवर्स जहाँ पर कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ द यूनिवर्स डी ओवर बी, और हबल्स लॉ वैल्यूज पुट किया, तो एज ऑफ द यूनिवर्स केम आउट टू बी 4.5 into 10⁻17 into seconds, एंड उसने आगे कैलकुलेट करने को भी बोला हुआ है, तो t is equals to 1 over 2.2 into 10 raised to power minus 18, 4.5 into 10 raised to power 17 seconds, I guess, I'm not wrong, yes, and years में हमारे पास कितना होगा 14.4। can you see both the screens ना at the same time? यस नहीं सर आपने क्या पावर दी है सेकंड्स को? उसने वैल्यू दी हुई है, हमने अपनी तरफ से तो नहीं दी, उसने हबल्स लॉ की वैल्यू दी हुई है, नहीं, 2.2 into 10 raised to power minus 18, एस्टिमेट एज में 17 17 17 सेकंड्स में, और ईयर्स में उसने, बल्कि सारे उसे सेकंड्स में ही बोला हुआ है, तो ईयर्स हमें देने की जरूरत भी नहीं है, उसने जस्ट
pull out. Let's not get into that. Okay. Moving on to the next one. We have. Oh, end of the paper. So that is the end of 4 to Feb March 2024. If there's still any questions left, you can ask me. बल्कि मुझे याद आया, we did not complete this part. 25/2 to the power का आंसर आ रहा है हमारे पास 2.15 एंड उसने हमें डिकेड एटम्स कैलकुलेट करने को बोला, तो ओरिजिनल में से आंसर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ डिकेड एटम अप्रोक्सीमेटली 22 आ जाएंगे माइक्रोग्राम्स। और जो आप पूछ रहे हो अब्दुल रहमान, यहाँ पे हमने गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना था कंप्लीटली। उसकी जो 3 कंक्लूजन्स थी, पहली कंक्लूजन हमारे पास क्या थी कि एटम इज मोस्टली फ्री स्पेस, जो हमें पता लगा था बाय अल्फा पार्टिकल व्हिच वेंट स्ट्रेट थ्रू। जो 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेज गई थी ना, 1, 2 एंड 3। एक जो बिल्कुल स्ट्रेट गई थी उसने क्या बताया था कि एटम इज मोस्टली फ्री स्पेस। जो डिफ्लेक्ट हुई थी दैट शोड के हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और एक जो थी वो डिफ्लेक्ट बैक हुई थी, दिस शोज के न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो 3 जो हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास आए थे, तो हमने वही पॉइंट्स डिस्कस करने थे। उसने हमें हिंट दे दिया हुआ था कि स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिस्कस करें, तो वो हमारे पास था कि एटम इज मोस्टली फ्री स्पेस। जो डिफ्लेक्ट हुए थे वो क्या बता रहा था कि हमारे पास जो है न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और जो 180 की डिग्री पे वापस गए थे वो हमें बता रहा था कि अल्फा इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कंसंट्रेटेड देयर। तो उसकी बेसिस पे हमने इसको आंसर किया। क्लियर ना? ठीक है सर, एक इससे पिछला जो सा लास्ट पार्ट है बिल्कुल इसके ऊपर, यस ये वाला। ट्रांसफार्मर का पूछा हुआ है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेजेस पे क्यों हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, कितनी दफा तो याद करवाया हुआ है। हाई इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों करते हैं, उससे करंट क्या हो जाता है हमारे पास, लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं और हमारे पास पावर लॉसेस कम Yes. आते हैं। ओके ठीक है। Okay. See you tomorrow, inshallah. And if still there is any question left, you could ask me या आज नहीं personally. आना। Love.